any kind of the application. So there may be the login and registration, both are functionality are very important. Mhm. So they will ask the scenario for registration. Okay, they considering the some important fields, and also the login scenario. So what will be the possible test cases for the login scenario? Okay, so when we talk about the login, there may be the username, password, and any kind of the authentication, OTP or captcha, and there will be the a login button or reset button or a submit button. Means login or submit both are same. Reset and something kind of buttons are there, right? So that is very mostly asked question. How we can write a test cases for login scenario. ठीक है, तो ये पूछते हैं. And okay, so in the last class we completed about uh, you know registration functionality. Okay, writing the test cases for registering functionality. रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी के लिए हमने टेस्ट केसेस लिखे हो कंप्लीट हो गए. नाउ जैसे हमने सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्या टेस्ट सिनार, सबसे पहले टेस्ट प्लान. ओके, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, देन टेस्ट प्लान, देन ओके, see this is what process. Okay, preparing the test plan, then understanding the test plan. Okay, sign up from project manager, writing the test scenario. Okay, then writing the test cases. Okay, so we written the test cases. Okay, then it will be review, and according to that one we have to create the RTM. Okay, so the real time it will take the 3 weeks of the time for creation of the RTM. Okay, so what is RTM? That is the mostly asked question. PPT we are covering the RTM requirement traceability matrix. So let us, I'm going to show you this document, RTM document. Okay, so what contains in the RTM? So जैसे सारे हमने टेस्ट केसेस लिखे, उसके बाद हम RTM क्रिएट करते हैं. ठीक है, जितने भी टेस्ट केसेस है, अगर हम विद फॉर दिस पर्टिकुलर सिनारियो के जो भी हमने लिखे हैं टेस्ट केसेस, तो वो उसके बाद हम RTM प्रिपेयर करते हैं. तो RTM का यूज़ क्या है कि सारे रिक्वायरमेंट मैप हुई क्या टेस्ट केसेस के साथ, वो है हमारा RTM. Okay, for example, test scenario ID is 1. Okay, requirement ID is 1.1 and test scenario ID is 1. So 0, 0 and test scenario is for registration functionality, right? Account registration functionality. All the test cases IDs are covered or not. Okay, so here what? Mapping with the test cases. ठीक है, 27 टेस्ट केसेस हुए कि नहीं कवर. ठीक है, सो Hmm. 27 टेस्ट केसेस हमने लिखे हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट RTM. Okay, so mostly asked question in the RTM. So simply you can say what is the RTM? RTM that contains the test scenario requirement ID, test scenario ID, and test scenario description. Okay, or that is also contain the sometimes business requirement. Okay, or you can say requirement is nothing but the user story. ठीक है, यूजर स्टोरी भी कह सकते हैं, यूजर स्टोरी सिनारियो भी कह सकते हैं. मतलब जो रिक्वायरमेंट सिनारियो है. ओके, टेस्ट सिनारियो मतलब जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट आईडी जो है यूज़र के लिए, और जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हो टेस्ट सिनारियो जो हम लिख रहे हैं. तो वो जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने कन्वर्ट किया टेस्ट सिनारियो में, और उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट केसेस लिखे. ठीक है, तो यूज़र स्टोरी है तो उसको बोलते हैं यूज़र सिनारियो, कि उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, और हम जो लिखते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट सिनारियो. तो जो यूज़र स्टोरी, यूज़र सिनारियो और टेस्ट सिनारियो के साथ जो भी टेस्ट केसेस मैपिंग हुई है वो सारी आई कि नहीं. Okay, so we can check from the RTM. All the requirement are fulfilled. Okay, so where we can check from the RTM. RTM से हमको पता चलता है कि सारे requirement fulfill हुए कि नहीं. ठीक है, so this is what RTM very important. Requirement. Okay, so हम चेक करते हैं कि सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए कि नहीं, सारे टेस्ट केसेस हुए कि नहीं, लिखे हुए कि नहीं, एग्जीक्यूट हुए कि नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा? RTM से. ठीक है, RTM से पता चलता है. ओके, so RTM will be create after the writing the all the test cases. ठीक है, टेस्ट केसेस सब कुछ लिखने होने के बाद RTM क्रिएट होता है. ठीक है, सो फॉर लॉगिन टेस्ट केसेस. ओके, सो लॉगिन के लिए हमने कितने टेस्ट केसेस ये किए थे लॉगिन फंक्शनलिटी के लिए? 23 टेस्ट केसेस, राइट? 23 फॉर द लॉगिन फंक्शनलिटी.
So the first test case, okay, validate the login into the application using the valid credential. ठीक है, वैलिड क्रेडेंशियल, यूजर नेम पासवर्ड जो भी हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है न्यू यूज़र का यहाँ पे, ओके, और हमने वैलिड डेटा दिया है और हमारा यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट हुआ होगा, तो वही हम यहाँ पे लॉगिन में यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको यूआरएल पे जाना है, एनी ब्राउज़र पे ओपन करना है, होम पेज पे जाना है, ओके, एंड लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर एन एग्जिस्टिंग अकाउंट आर रिक्वायर्ड। सो हमको जिसका ऑलरेडी अकाउंट है वही लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए, नए अकाउंट के नहीं होना। जिसका अकाउंट है वही डालेंगे ना हम। सो स्टेप्स, गो टू द माई अकाउंट, ड्रॉप मेन्यू, देन वहाँ पे लॉगिन नाम का ऑप्शन मिलेगा। ओके, सो दैट विल बी द वैलिडेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट वन। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट वन? यूजर शुड हैव टू नेविगेट टू लॉगिन पेज। ठीक है, जैसे हम माई अकाउंट पे जाते हैं और वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो पहला एक्सपेक्ट रिजल्ट होना चाहिए कि लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। ओके, सो ये जो फर्स्ट सिनारियो है टेस्ट केस, वो कॉमन क्या है इसमें, ये रहेगा वैलिडेट, ये पॉजिटिव सिनारियो रहेगा, सॉरी टेस्ट केस है। लॉगिन के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हाँ, वैलिड क्रेडेंशियल। अब वैलिड क्रेडेंशियल मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी उसका अकाउंट, हाँ, जो ऑलरेडी वो अकाउंट होल्डर है उसका। ठीक है, ठीक है, ये देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट वन, क्लिक ऑन द माई अकाउंट एंड क्लिक ऑन द लॉगिन, सो नेविगेट टू द लॉगिन। ओके, सो नेविगेट हो गया लॉगिन पे। ओके, एंड हियर इज द यूजर नेम पासवर्ड यू हैव टू एंटर। ओके, सो एग्जिस्टिंग अकाउंट का जो यूजर नेम पासवर्ड है वो आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन पे क्लिक होने के बाद क्या एक्सपेक्टेड रहेगा कि उसका पर्टिकुलर वो दिखना चाहिए होम पेज। ठीक है, सो आफ्टर इंटरिंग ईमेल आईडी, टेस्ट डेटा के लिए रिफर करो, ये टेस्ट डेटा। ओके, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हमने अकाउंट बनाया था वो, और ये पासवर्ड रेफर करो यहाँ पे। और उसके बाद जो लॉगिन बटन पे क्लिक होने के बाद, ओके, सो हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट 2 होना। सो 2 इज व्हाट? सो यूजर शुड हैव टू लॉग इन टू टेकन टू द अकाउंट पेज। ठीक है, उसके होम पेज पे ओपन होने को होना। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सिनारियो, पॉजिटिव टेस्ट केस। अब वैलिडेट द लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, इन टेस्ट टिप्स क्या है एक बार क्या बताना। क्या क्या टेस्ट टिप वो टेस्ट, क्या बोले? टेस्ट टिप Steps, टेस्ट टिप steps. Okay, this is the steps. What steps you have to execute during the execution of this test case. अगर ये टेस्ट केस आपको एग्जिट करना है, तो आपके लिए पहले क्या स्टेप्स लिखना पड़ेगा? वैलिडेटिंग द लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन यूजिंग क्रेडेंशियल, वैलिड क्रेडेंशियल। तो सबसे पहले आपको होम पेज ओपन करना है। ठीक है, होम पेज ओपन करने के बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, तो ये दिखेगा। उसके बाद आपको ये डालना है, फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो है ये है स्टेप्स, इसको बोलते हैं टेस्ट स्टेप। ठीक है, ठीक है, क्लिक ऑन द लॉगिन, ओके, अकाउंट, देन लॉगिन, देन लॉगिन पे क्लिक करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट 1 दिखना चाहिए, मतलब वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। और देन एंटर द वैलिड email into the email address field, and that is for refer to the test data that is available here, test data. ठीक है, enter the valid password into the password field and click on the login button. So after the click on the login button, so account page will be display. ठीक है, होम पेज अकाउंट का यूजर का। दिस इज फॉर पॉजिटिव टेस्ट केस। ठीक है, एंड नेगेटिव टेस्ट केस, तो वैलिडेट, तो जैसे हमारा ये लॉगिन का है, ओके, सो इसमें क्या हो गए टेस्ट केसेस, सिनारियो क्या है कि व्हाट टू टेस्ट। सो हमको क्या टेस्ट करना है, लॉगिन फंक्शनलिटी, एंड टेस्ट केसेस मतलब हाउ टू टेस्ट। सो वी कैन राइट मल्टीपल टेस्ट केसेस फॉर दिस वन। ठीक है, सबसे पहले हम ये वैलिड डालेंगे, उसके बाद ये इनवैलिड डालेंगे, ये इनवैलिड डालेंगे, ये वैलिड डालेंगे, ये इनवैलिड डालेंगे, दोनों भी इनवैलिड डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, उसमें सब कुछ डालेंगे और टेस्ट करेंगे, है क्या नहीं? मैंडेटरी फील्ड क्या है? ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आना चाहिए। देन फॉरगेटन पासवर्ड का भी ऑप्शन चेक करेंगे, सब सब चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए टेस्ट केसेस। उसके बाद वैलिडेट लॉगिन इनटू द वैलिडेटिंग लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों भी इनवैलिड डालेंगे। ठीक है, दोनों भी, ईमेल भी इनवैलिड और पासवर्ड भी इनवैलिड, स्टेप्स वही रहेंगे हमारे।
ठीक है। सो यहाँ पे रैंडमली कोई भी डेटा चूज करो और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि हमको बताना चाहिए कि वार्निंग मैसेज आना चाहिए कि नो मैच फॉर द ईमेल एड्रेस और पासवर्ड शुड बी डिस्प्ले। यार एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो भी है वो हमारे FRS में रहेगा। ठीक है। यूजर इज लॉग इन विद द इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा चाहिए कि यू आर नॉट दिस इज यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन और समथिंग वॉट एवर जो हमको यहाँ पे पुट करना है। डेट्स इट। ठीक है, समझा। तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पे हम इसलिए ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वही पूछे जाता है। तो हो सकता है डोमेन अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन फील्ड वही रहेंगी, है क्या नहीं। लॉगिन हर जगह रहता है ना, हर एप्लीकेशन को लॉगिन रहता है, बराबर है कि नहीं? हर एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन रहता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन हाउ यू कैन लॉग इन? सो द मोस्टली आज क्वेश्चन है टेस्ट केसेस, मतलब इंटरव्यू में कि लॉगिन के लिए बताइए टेस्ट केसेस। ठीक है। So how we are going to test? Then validate a login into the application using invalid email address and valid password combinations। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंड वैलिड पासवर्ड। अब वैलिड पासवर्ड मतलब कौन सा? जो ऑलरेडी आपका अकाउंट बन चुका है वही पासवर्ड यूज करो। ठीक है, ठीक है। ये इनवैलिड ईमेल आईडी जिसका अकाउंट है ही नहीं, और ये वैलिड पासवर्ड जिसका ऑलरेडी अकाउंट है लेकिन वही पासवर्ड हमने यूज किया, ये भी चेक करना है। ठीक है, सो यहाँ पे वही आना चाहिए। देन वैलिड ईमेल आईडी एंड इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, फोर्थ नंबर। ओके, वैलिड ईमेल आईडी एंड इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, सेम थिंग, स्टेप्स आर सेम। देन अगेन इनवैलिड विदाउट प्रोवाइड एनी क्रीडेंशियल। ठीक है, सब निगेटिव टेस्ट केसेस लिख रहे हैं हम। ओके, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी क्रीडेंशियल, तो क्या आना चाहिए कि दिस फील्ड इज मैंडेटरी। ठीक है, so the warning message with the text warning no match or no email address found are okay। so ये नहीं आना चाहिए कि वो एक्सपेक्टेड है ऐसा आना चाहिए। ठीक है, वो हम लिख सकते हैं, तो ज़रूर नहीं कि यहाँ पे जो लिखा है 100% ट्रू है। ठीक है, so validate the because we don't have the FRS। okay, so validate the login into the application without providing the credential। अगर आप यहाँ पे क्रीडेंशियल प्रोवाइड नहीं करते और लॉगिन पे क्लिक होते हो तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए कि ईमेल इज रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एज पर द FRS, लेकिन वो लॉगिन नहीं होना चाहिए। बस अगर आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन हो रहा है, मतलब दैट इज बिग बग। दिस इज टोटली बिग बग। ठीक है, नाउ वैलिडेट द फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनलिटी। ठीक है, वहाँ पे एक लिंक है फॉरवर्ड पासवर्ड की, हाँ, उसको वैलिडेट करो। ओके, लॉगिन पे कभी कभी फॉरगेट पासवर्ड रहता है कि नहीं? हाँ रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लॉग आउट करेंगे तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? एज पर द रिक्वायरमेंट समटाइम्स वो आपको एक OTP ईमेल आईडी मांगेगा या फिर मोबाइल नंबर मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है? और हम फॉरगेट पास हाँ, जो हम फॉरगेट पासवर्ड किसको करते हैं? जो हैविंग द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, एक तो ईमेल से रजिस्टर होगा। देखो, हर रजिस्ट्रेशन में एक यूनिक आईडी रहती है। यूनिक आईडी हो सकता है उसका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी। ठीक है, द पर्सन हैविंग द डिफरेंट ईमेल आईडी ही कैन क्रिएट अ डिफरेंट अकाउंट फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जैसे जीमेल है, मेरे 4-5 ईमेल आईडी है, बट आई एम द वन पर्सन बट हैविंग द 4 ईमेल आईडी, दैट इज व्हाट ईमेल आईडी इज यूनिक देयर। ओके, ईमेल आईडी इज यूनिक। ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं हर ईमेल आईडी पे मैं सेम मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूँ, बट मोबाइल नंबर इज नॉट यूनिक देयर। ठीक है, तो उनके जो प्राइमरी की है दैट इज नोन एज द डेटाबेस कॉन्सेप्ट, दैट इज नोन एज प्राइमरी की इन द डेटाबेस। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, यूनिक की। सो हियर इज व्हाट, सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर मोबाइल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका होना, और वो जो पर्सन है वो रजिस्टर होना। ओके, सो यू कैन चेक द फॉरगेट फंक्शनलिटी। तो सबसे पहले वैलिडेट फॉरगेट पासवर्ड लिंक। ओके, सो हम लिंक वैलिडेट कर रहे हैं जिस पे हम क्लिक करने के बाद वो वैलिडेट पासवर्ड क्या बोलते हैं, वैलिडेट मीन्स फॉरगेटन पासवर्ड पे जाना चाहिए। ठीक है, सो क्लिक ऑन द माई अकाउंट, ड्रॉप मेन्यू, लॉग इन एंड फॉरगेट पासवर्ड। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना है कि वो दैट इज शुड बी नेविगेट टू द फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो हो गया हमारा पेज, जा गया फॉरगेट पासवर्ड की तरफ गया, नेविगेट हो गया ना। हाँ, तो दैट इज ट्रू।
मतलब टेस्ट केस हमारी पास हो गई। तो हमारी टेस्ट केस ये है कि जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो यू विल नेविगेट टू द फॉरगेट पासवर्ड पेज। ठीक है, दैट इज नेविगेटेड मीन्स दिस इज द पास, टेस्ट केस इज पास। नाउ यू कैन वैलिडेट दिस। ओके, फॉरगेट पासवर्ड दैट इज नेविगेटेड, देन यू कैन चेक देयर द एक्सपेक्टेड, क्या बोलते हैं हम उसमें फंक्शनलिटी चेक कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये इसके लिए टेस्ट केस लिखा नहीं है अभी। ठीक है, बट हमने ये चेक किया कि फॉरवर्ड पासवर्ड की गया है कि नहीं, उसके लिए हम लगे तो दूसरा सिनारियो लिखेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी द अगेन वन सिनारियो, दैट इज व्हाट फॉरगेट पासवर्ड इज द सिनारियो। सो फॉर दिस सिनारियो वी हैव रिटन द सम टेस्ट केसेस हियर 25। ठीक है, ठीक है नहीं। सो 25 टेस्ट केसेस लिखे हैं फॉरगेट पासवर्ड के लिए। ओके, सो दैट इज वन सिनारियो, बट हियर हमने क्या किया है कि नेविगेट हुआ कि नहीं ये चेक किया, दैट्स इट। ओनली नेविगेट चेक किया, बट फॉरगेट पासवर्ड के लिए देर आर सो मेनी टेस्ट केसेस रिटर्न हियर। ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट फंक्शनलिटी। ओनली वी आर रिटर्न द वन टेस्ट केस टू चेक वेदर द लिंक इज प्रॉपरली रिडायरेक्टेड टू फॉरगेट पासवर्ड और नॉट। देन वैलिडेट। देखो हमारा क्या सिनारियो चल रहा है लॉगिन का, तो लॉगिन के ऊपर जो दिख रहा है उसी के ऊपर हम टेस्ट केस लिख रहे हैं बस। ठीक है, ये जो दिख रहा है हमको इसके ऊपर टेस्ट केस लिख रहे हैं। ओके, देन वैलिडेट द लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन यूजिंग द कीबोर्ड कीज। कौन सी टेस्टिंग है ये बताओ? कीबोर्ड की से हमको टेस्ट करनी है, कौन सा कौन सी? यूजेबिलिटी ना। यूजेबिलिटी। ओके, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, एंड टू एंड टेस्टिंग। तो क्लिक ऑन दिस वन। ओके, देन टैप, प्रेस द टैप, टैप की से प्रेस करो, टैप 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 जाना चाहिए हर जगह। ठीक है, पहला टैप अपना ईमेल पे जाना चाहिए, दूसरा टैप अपना पासवर्ड पे जाना चाहिए। ओके, एंड प्रेस द टैप की टू एंटर अंटिल द कंट्रोल कम्स टू द लॉगिन बटन। तब तक आप प्रेस करते रहो लॉगिन बटन पे जब तक कंट्रोल नहीं जाता है। और लॉगिन बटन पे जब कंट्रोल गया तो एंटर प्रेस करना है आपको, ओनली कीबोर्ड्स यूज करने हैं। ओके, आपको माउस यूज नहीं करना है, ओनली कीबोर्ड्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कीबोर्ड्स टैब पे। ओके, सो नाउ ईमेल आईडी, देन टैब। ओके, देन रिटर्न समथिंग, देन टैब। ओके, तो फॉरगेट पासवर्ड भी आने से देन यहाँ पे और बटन से एंटर करो। ओके, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ओके, एंड जहाँ पे हम ग्रामर, ओके, और क्या बोलते हैं स्पेलिंग वगैरह चेक करते हो, कौन सी है? सेम। यूजेबिलिटी है ना वो। हाँ, दैट इज आल्सो द यूजेबिलिटी। ओके, यूजर इंटरफेस मीन्स यूआई टेस्टिंग। यूआई। यूआई मतलब जो आपका जीयूआई है, मतलब लुक एंड फील। ठीक है, वो है। सो these are the steps and user should able to log in into the application. This is our expected result by using the tabs. Okay, so we have to enter the valid username and password. ठीक है, then validate the email address and password text field in the login page have the placeholder text. ठीक है, हमको ये चेक करना है कि प्लेस होल्डर है कि नहीं उसको। व्हाट इज प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर वही जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम इस पे सपोज लिखते हैं, प्लेस होल्डर। अगर मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज प्लेस होल्डर? हाँ वही तो है प्लेस होल्डर। Validating the email address and password text field in the login page that have the placeholder text. इनको placeholder text होना चाहिए। तो प्लेस हाँ जहाँ पर हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे या फिर पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो प्लेस होल्डर टेक्स्ट। मतलब और बताओ। प्लेस होल्डर टेक्स्ट वही जहाँ पर लिख के नहीं होता है क्या, ईमेल एड्रेस अच्छा या ठीक है, अभी मैं फिर आपको एक दिखाता हूँ कि इसमें से प्लेस होल्डर कौन सा है, लेबर कौन सा है और ये टेक्स्ट ईमेल फील्ड। एड्रेस लिखा है ना वो ये है। ये नहीं नहीं नहीं, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। हाँ, इसको बोलते टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो ईमेल एड्रेस लिखा है ना वो है प्लेस। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये? वो लेबल। लेबल। हाँ, वेरी लेबल। गुड, इसको बोलते हैं लेबल।
So the text which is written inside the text field, that is known as placeholder. ओके, जैसे हम लिखते हैं वो वैनिश होता है, ऐसे दिखता नहीं है, ठीक है, इनविजिबल हो जाता है. सो वी आर चेकिंग हियर द ईमेल एड्रेस को वही ईमेल एड्रेस प्लेस होल्डर है कि नहीं, और पासवर्ड को वही प्लेस होल्डर है कि नहीं. तो ऐसे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिखते हो, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा, ठीक है. सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू चेक. सो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वही होना चाहिए जो उसका जो लेबल है वही उसका प्लेस होल्डर होना चाहिए, ठीक है. Then validate the login into application browsing the back using the browser back button. Okay, इसको बोलते हैं हम कौन सी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, है ना. मैंने आपको बताया था पढ़ते समय, बड़ी सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए बहुत बड़े सर्टिफिकेशन होना, और वो वैसे करते हैं. लेकिन बेसिक सिक्योरिटी टेस्टिंग विल डू इन द लॉगिन पेज, ठीक है. जैसे अगर आपने लॉगिन किया और बैक पे बटन पे क्लिक किया तो आप बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है. So validating the login into the application and browsing the back using the browsing back button, ठीक है. So ये पेज आए, हमने लॉगिन किया, वैलिड यूजर नेम पासवर्ड और ये हमने डाला. सो यू शुड नॉट बी लॉग आउट. तो जैसे अगर आपने लॉगिन किया है और आपने बैक बटन पे क्लिक किया है तो लॉग आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या नहीं. लॉग आउट नहीं होना चाहिए, जब तक वो लॉग आउट पे क्लिक नहीं करता तब तक नहीं लॉग आउट होना चाहिए. यूजर ने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन हो गया, तो जैसे अगर आपने बैक पे क्लिक किया तो लॉग आउट नहीं होना चाहिए. ये भी चेक करना, डेट इज सिक्योरिटी काइंड ऑफ टेस्टिंग. ओके, लॉगिन बैक और लॉगिन फॉरवर्ड, ठीक है. सो वैलिडेट द लॉगिन आउट फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड ब्राउजिंग द बैक यूजिंग द ब्राउजर बैक बटन, ठीक है. तो यहाँ पे लॉगिन इनटू, ओके, सो लॉगिन इनटू किया है, लॉग इन एंड डेट इज फॉर लॉग आउट. बैक बटन से लॉग इन और लॉग आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है. हाँ, शुड नॉट गेट द लॉग इन अगेन एंड नॉट शुड नॉट गेट द लॉग आउट. तो अगर आपने लॉग इन किया और बैक पे क्लिक किया तो लॉग आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है. और बैक पे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो लॉग इन नहीं होना चाहिए, ठीक है. बैक एंड फॉरवर्ड. So here we need to do the some changes. Okay, yeah. So we can check here test data. Both are same here. Okay, so here login button. Okay, and click on the login, and here is the logout button. Okay, logout option. Okay, so ये टेस्ट केस कैसी वर्क करती है कि अगर आप लॉगिन करते हो, ओके, सो वैलिडेट द लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन एंड ब्राउजिंग बैक यूजिंग द ब्राउजर बैकअप बटन. तो अगर आपने लॉगिन किया और आप ब्राउज कर रहे हैं कि बैक बटन पे, तो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए. देखो कि अगर आपने लॉगिन किया, यूज़र ने पासवर्ड है, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, लॉगिन बटन पे जाने के बाद आपने ब्राउज़र बैक पे क्लिक किया, बैक बटन पे, तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि अगर आपने शुड नॉट लॉग आउट, ओके, आपको लॉग आउट नहीं होना चाहिए, ओके. आपने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन किया, आपने लॉगिन करने के बाद आपने यूज़र ने पासवर्ड डालने का अपना अकाउंट ओपन हो गया और बैक पे क्लिक करने के बाद आप लॉग आउट नहीं होना चाहिए. ओके, okay, then validate the login out from the application and browsing back using the ब्राउज़र बैक बटन. ये लॉगिन हो गया, ये लॉग आउट. अब लॉग आउट पे अपन क्लिक करेंगे, ओके, तो भी वो लॉगिन नहीं होना चाहिए फिर. सो वैलिडेट द यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, फिर हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, ओके, और उसके बाद हमने क्लिक ऑन द ड्रॉप मेन्यू लॉग आउट. लॉगिन पे हमने क्लिक किया, हम चले गए, ठीक है, एंड लॉग आउट पे क्लिक कर दिया, हम लॉग आउट हो गए, ठीक है. लॉग आउट होने के बाद और अगर हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो यूजर शुड नॉट गेट लॉगिन अगेन. अच्छा, एक बार यदि हमने लॉग आउट किया और फिर से बैक किया तो लॉगिन नहीं दिखाना. हाँ, तो दो टेस्ट केस हो गए इधर, ठीक है. एक हो गया कि एक पहला टेस्ट केस हो गया कि आपने लॉगिन किया
और और बैक पे क्लिक किया तो आप लॉग आउट नहीं होना चाहिए, सही है ना? हाँ लॉग आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉग आउट मतलब कब होना है जब तक वो लॉग आउट पे क्लिक यूजर नहीं करता। अगर प्रॉपरली लॉग आउट कर रहा है तो ही लॉग आउट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, अगर वो बैक बटन पे क्लिक करने के बाद लॉग आउट हो एक रहा बार है। उसने और एक बार उसने प्रॉपरली लॉग आउट कर लिया तो लॉग इन नहीं होना चाहिए। हाँ अभी पहला टेस्ट सिनारियो ये है कि लॉगिन किया है, ब्राउज़र बैक बटन पे क्लिक किया है, तो लॉग आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा सिनारियो है कि यूज़र ने पासवर्ड डाला है, लॉगिन हो चुका है वो, और उसने लॉग आउट पे क्लिक किया है। हाँ, तो अगर वो बैक करेगा तो उसका प्रीवियस पेज नहीं दिखना चाहिए, दैट इज इन लॉगिन। लॉग इन पेज। हाँ मतलब वो लॉगिन पेज पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार लॉग आउट किया तो सेशन एक्सपायर होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स कभी कभी कैसा क्या होता है कि हमने लॉग आउट करने के बाद भी हम बैक करते हैं तो लॉगिन हो जाता है। लॉग इन दिट हो इज सकता बग, और ये सिक्योरिटी काइंड ऑफ इशू बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पेमेंट गेटवे में। है। ठीक है, तो ये परफेक्ट ऐसा वर्क करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये लॉग इन लॉग आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ये दो टेस्ट केसेस वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग इन लॉग आउट ब्राउजर बैक, सो दिस इज व्हाट सिक्योरिटी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट केसेस है, सिक्योरिटी टेस्ट केसेस है ये। नाउ अगेन सिक्योरिटी काइंड ऑफ द टेस्ट केस, वैलिडेट द लॉगिंग इनटू द एप्लीकेशन यूजिंग द इनएक्टिव क्रेडेंशियल। अब इनएक्टिव क्रेडेंशियल मतलब क्या कि uh, जो ऑलरेडी होल्डर है, मतलब रजिस्टर्ड अकाउंट है, लेकिन उसने 3 साल अपने यूजर ने पासवर्ड यूज ही नहीं किया, मतलब लॉग इन ही नहीं किया, तो उसको हम बोलेंगे कि इनएक्टिव क्रेडेंशियल। ओके, दैट इज नोन एज द इनएक्टिव क्रेडेंशियल। सो वी आर गोइंग टू चेक द इनएक्टिव क्रेडेंशियल। ओके, अगर आपने इनएक्टिव क्रेडेंशियल डाला तो अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए एज पर द एफआरएस, तो उसको यूजर शुड नॉट बी टू लॉग इन। ओके, तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, तो कैसे, तो ये आपको दे के रहेगा, तो लेकिन टेस्ट केसेस आपको पूछेंगे, तो जो टेस्ट केसेस है, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस है वो आपको बताना है। ठीक है। सो वैलिडेट लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन यूजिंग द इनएक्टिव क्रेडेंशियल, समटाइम इनएक्टिव क्रेडेंशियल। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो जब हमने यूजर नेम पासवर्ड सब डाल दिया और टेस्ट डेटा फॉर दिस इज पेंडिंग। ओके, समटाइम्स द टेस्ट डेटा यू आर नॉट अवेलेबल। ओके, सो इनएक्टिव का जो है वहाँ पे टेस्ट डेटा प्रोवाइड करेंगे, सो यूजर शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कि यू आर नॉट एक्टिव यूजर। ओके, यू आर नॉट एक्टिव यूजर, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए। ओके, देन वैलिडेट द नंबर ऑफ, और जो एक्टिव नहीं है अकाउंट, सपोज क्लोज हो चुका है, वो एंटर करके देखेंगे, ऐसे है ना? हाँ इनएक्टिव, दैट इज नॉट एक्टिव। अगर अकाउंट क्लोज भी होता है तो वो डिपेंडेंट है कि अकाउंट क्लोज होने का बाद उसका ईमेल आईडी स्टिल सिस्टम में रहता है या नहीं रहता है। अगर वो ईमेल आईडी सिस्टम में नहीं रहता है तो वो नया नया हो गया फिर, अगर वो रहता है तो दैट इज इनएक्टिव। क्योंकि कुछ कुछ इसमें प्राइमरी की ले लेते हैं, जैसे यूजर ईमेल आईडी और फिर पासवर्ड, और उसके का दूसरा अकाउंट क्रिएट ही नहीं हो पाता, फिर आपको दूसरी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना पड़ता है, भला ही वो इनएक्टिव क्यों ना हो। ठीक है ना, वो एक्टिव ही नहीं होता है लाइक दिस। तो दैट्स पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट है एफआरएस का वैसा। वैलिडेट द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बिजनेस, कुछ सिक्योर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो अगर हमने 3 बार अनसक्सेसफुल मतलब इनवैलिड इनवैलिड समथिंग समथिंग। यूजर आइडेंटिटी पासवर्ड नहीं ओके, आया तो फिर तो click on invalid email address into the email address and invalid password into password field and click on the login and repeat these steps for 5 to 4 more times, more than 3 times आपको चेक करना ही है। ठीक है, तभी उसको हम बोले ना कि नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल 4 से 5 बार डालो आप, 5+4+, देन उसको हम बोले मोर देन 3 टाइम्स। हाँ। बराबर। ठीक है, ऐसे हमने मोर लिखा देन यहाँ पे। ठीक है, तो वो यूजर ने पासवर्ड आपको प्रोवाइड करेगा, देन द वार्निंग मैसेज शुड बी ओके, जो एज पर द रिक्वायरमेंट कि आपका 1 आवर के लिए ये हो गया, ऐसा हो गया, जो भी है वो दिखना चाहिए मैसेज। ठीक है, वार्निंग मैसेज शुड बी डिस्प्ले।
ठीक है कि नहीं? सो योर अकाउंट हैज एक्सीड अलाउड नंबर ऑफ लॉगिन वॉट एवर जो भी है वो हम डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे, वो होना चाहिए। मैसेज। तो कंसिडर ये करो कि आपको वैसे टाइप को सोचना है लॉगिन में, कितना सोचना है। ओके, इतना सा नहीं है, समझ आ रहे कि नहीं? वो सोचना कैसा है वो है, मेरा पढ़ाना वही है, मतलब ट्रेनिंग दिस ओनली कि हाउ यू आर गोइंग टू थिंक। ओके, ओनली टू फील्ड्स आर हियर and how we are going to take the how we are going to think what will be the number of test cases here. Okay, so test case means how to test. Okay, and test scenario is what to test, what we are going to test. Login is a test scenario. Okay, then how we are going to test? So there are the 23 test cases. Okay, in the number of 23 ways we are going to test this login. इतनु सा है क्या, नहीं इतनु सा छोटा सा यू आर गोइंग टू टेक नंबर nth नंबर ऑफ 23 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो यही रहता है टेस्टिंग में। ओके, टेस्ट केसेस टेस्ट सिनारियो, बस यही रहता है कि आप कैसे सोच सकते हो। और ऐसे सोचो कि बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें सोचो, छोटे छोटे इतनु सा, ये भी एवरीथिंग यहाँ पे वो होम आइकॉन होना, एवरीथिंग ये ऐसा भी होना, इसके लिए भी टेस्ट केसेस लिखो, ये ऐसा होना एवरीथिंग। ओके, इसके लिए टेस्ट केसेस लिख रहे हैं हम, देन इसके लिए लिखना है। ओके, इसके लिए लिखना है, होम पेज के लिए इसके लिए लिखना है। ओके, एवरीथिंग सब सोचना है कि एक्यूरेट होना चाहिए, जितना ज़्यादा टेस्ट केसेस लिखोगे ओके सो जितनी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। ओके, ऑल दिस रिक्वायरमेंट इज कवरिंग और नॉट प्रॉपरली। सो फोकस पहले फंक्शनलिटी के ऊपर रहता है और बाकी के लुक एंड फील के ऊपर बाद में। ठीक है, सो फंक्शनलिटी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनलिटी अगर सब कुछ हो गया तो फिर हम उसको चेंजेस कर सकते हैं फिर उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए। ठीक है, सो वैलिडेट द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट्स, देन वैलिडेट द टेक्स्ट इनटू द पासवर्ड फील्ड इज टॉगल टू हाइड इट्स विजिबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पासवर्ड फील्ड में लिख रहे हैं वो होना चाहिए हाइड। ठीक है, so the text enter visibility, okay, instead of entering the character getting disabled, okay, so that should be visible as a asterisk or dot symbol। ठीक है, तो पासवर्ड फील्ड में जो भी लिख रहे हो एस्ट्रिक नहीं तो इससे वो इनक्रिप्ट होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। ठीक है, देन वैलिडेट द टेक्स्ट इनटू द पासवर्ड फील्ड टॉगल टू हाइड इज विजिबिलिटी। ओके, वैलिडेट द कॉपिंग ऑफ द टेक्स्ट एंटर इनटू द पासवर्ड फील्ड। हाँ, हेलो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप पासवर्ड में लिख रहे हैं वो कॉपी नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अभी बताता हूँ, ये लिखा आपने। ओके, सो वी आर गोइंग टू कॉपी एंड हियर पेस्ट, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है, नॉट अलाउड। ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड। तो क्या फायदा रहेगा इधर से कॉपी उधर से पेस्ट? हाँ, ये भी चेक करना है आपको। ठीक है, so copy option is right click on the menu should able to disable। ओके, तो अब देखो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक्सपेक्टेड रिजल्ट और यहाँ पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे कॉपी नहीं दिख रहा है। ठीक है, डिसेबल है, बाकी की इनेबल है। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड सेकंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज पासवर्ड शुड नॉट बी कॉपीड। ओके, तो नहीं हुआ है। और कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर बट नॉट कॉपीड। सो कीबोर्ड के बटन भी चेक किए हमने। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन वैलिडेट द पासवर्ड इज नॉट विजिबल इन द पेज सोर्स। ठीक है, सो जो भी आपने पासवर्ड डाला है वो पेज सोर्स पे विजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे लिखता है 1 2 3 4 5 एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द राइट क्लिक। ओके, इंस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैंने पासवर्ड डाला है वो यहाँ पे विजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्ट करता है इस फील्ड को, सो यहाँ पे वो विजिबल है क्या? नहीं है। ओके, पेज सोर्स पे दिखना नहीं चाहिए वो, दिस इज अ पेज सोर्स। इस पेज सोर्स पे जो भी मैंने डाला यहाँ पे वो फील्ड यहाँ पे मतलब जो वैल्यू यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही टेस्ट केस के तरफ आपको ध्यान देना है लॉगिन पे। ठीक है, जो भी आपको पूछेंगे कोई कि लॉगिन टेस्ट के लिए, तो लॉगिन के लिए सब वही डालेंगे, निगेटिव सिस्टम पहले वैलिड डालेंगे फिर देन इनवैलिड। ओके, पहले यूज़र नेम ये डालेंगे तो उन्हें डालेंगे।
ओके, वो डालेंगे तो ये नहीं डालेंगे, फिर दोनों भी नहीं डालेंगे, ठीक है, ये सब कुछ बता देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, पासवर्ड शुड बी हाइड, ओके, देन पासवर्ड शुड नॉट बी कॉपीड, ओके, ये आपको बताना है उस लेवल पे, ठीक है। देन वैलिडेट लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन आफ्टर चेंजिंग द पासवर्ड, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन करते हो अपने अकाउंट में, और आप पर अपने अकाउंट में जाके अगर आपने पासवर्ड फील्ड में आपका पासवर्ड अगर आपने चेंज किया है, तो वो पासवर्ड चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका पासवर्ड जो चेंज हुआ है वो आपको डालना है, यूजर शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन विद ओल्ड पासवर्ड, ठीक है, एंड यूजर शुड एबल टू लॉग इन विद न्यू पासवर्ड, ठीक है। अब ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट 1 लिखा है यहाँ पे, यूजर शुड नॉट अलाउ टू लॉग इन, किसके लिए, बिकॉज अभी आपने पासवर्ड चेंज किया है, सो यू कैन चेक हियर द लॉग इन विद द वैलिडेट ER1 एक्सपेक्टेड रिजल्ट 1, because you are login with the your first username password, that is what your expected result, user should not allowed to log in, okay. So enter the username password field, okay, then log in, change the password and you are confirm the password, and then you are okay. So यहाँ पे that is for the validation, but expected result 1 is actually here. Repeat the step 1 to 5 expected result 1, ओके। 1 to 5 अगेन स्टेप रिजल्ट चेक करना है अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है, ओके। एंड नाउ द चेंजेबल जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने वही सेम पासवर्ड डाला तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट 1 होना चाहिए कि अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है और आपने ओल्ड पासवर्ड डाला है तो यू शुड नॉट बी अलाउड टू लॉग इन, और आपने जो पासवर्ड चेंज किया है उससे अगर आपने लॉग इन किया है देन यूजर शुड एबल टू लॉग इन, तो यूजर शुड नॉट बी लॉग इन विद द ओल्ड पासवर्ड। समझा क्या? नहीं। देखो, तो ये जो हमारी टेस्ट केस है, हमको चेक करना है यूजर। उसमें एक मिनट, ये जो टेस्ट स्टेप्स है उसमें लिखा है कि माय अकाउंट पे गया, क्लिक ऑन लॉगिन पे किया, तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब होना पासवर्ड चाहिए। चेंज करने के बाद ना ओल्ड नहीं, पासवर्ड से ऐसा बोलना है कि उसका एक मिनट, हाँ। आफ्टर चेंजिंग द पासवर्ड, बराबर, चेंज करने के बाद लॉगिन वहां पर लिखना चाहिए ना, फिर ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन। तो लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेस्ट डेटा अवेलेबल है ना, क्या डालना है, तो दिस इज द टेस्ट डेटा ना, सो दिस इज ओल्ड वन ना, हाँ टेस्ट डेटा इज अवेलेबल, हाँ हाँ। ठीक है। समझा क्या एक्सप्लेन करूँ और? एक मिनट, मुझे पढ़ने तो वो स्टेप क्या है तो। ओके, सो चेक हियर। सबसे पहले लॉगिन करेगा एग्जिस्टिंग यूज़र आईडी से, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखेगा, ये डालेगा और लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद उसको ऑप्शन देखेगा चेंज योर पासवर्ड लिंक, ओके, क्लिक ऑन द चेंज द पासवर्ड लिंक पे क्लिक करने के बाद न्यू पासवर्ड वो डालेगा, ओके, और उसको कंफर्म करेगा, ठीक है। देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेगा, ओके। सो नाउ क्लिक ऑन द माई अकाउंट ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सिलेक्ट द लॉगआउट ऑप्शन। अभी उसने क्या किया, पासवर्ड चेंज किया और लॉग आउट किया। लॉग आउट करने के बाद अगेन वी हैव टू फॉलो द 1 to 5 स्टेप्स, ठीक है, सेम स्टेप, यूज़र नेम पासवर्ड डालो, ठीक है। और इसमें अगर अगर आपने ओल्ड यूज़र नेम पासवर्ड डाला सो यू विल गेट द एक्सपेक्ट रिजल्ट, यू शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड डाला तो यूज़र शुड नॉट बी अलाउड टू लॉग इन, ओके। तो वहां पर स्टेप 10 में लिखना पड़ेगा ना, रिपीट फॉर द 1 ओल्ड, to हाँ, 5 फॉर द बाय ओल्ड, यूजिंग ओल्ड पासवर्ड, ठीक ओल्ड है। क्रेडेंशियल। सो नहीं लिखा तो भी चलता, बिकॉज फॉर द न्यू वी हैव रिटन हियर द 11 स्टेप, ठीक है।
So repeat the same this one, that is for what? Expected result one. This is for the old thing, and enter the new credential given in the step 7 and click on the login button. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है. पासवर्ड चेंज किया उसके बाद में लॉग आउट करके ओल्ड यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन किया तो नहीं होना चाहिए ना, हाँ, वैसे ही बोलना है ना उनको. बेस 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 बिल्कुल. अच्छा, लॉगिन न्यू पासवर्ड से होना पासवर्ड चाहिए. पासवर्ड चेंज के लिए है ना, पहले ओल्ड से ही वो लॉगिन करेगा, उसके बाद में वहां पर चेंज करेगा पासवर्ड, और फिर लॉग आउट करने के बाद ओल्ड से अगर लॉगिन करता है तो लॉगिन नहीं होना चाहिए ना, न्यू से होना, न्यू से होना ऐसा चाहिए. ना. यस. Okay. ठीक है, एंटर द न्यू क्रेडेंशियल इन द स्टेप 7 एंड क्लिक पहले ऑन तो द. वो ओल्ड यूजर आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करेगा, उसके बाद लॉग आउट करने के बाद अगर वो चेंज करने के बाद लॉगिन करता है तो नहीं होना चाहिए ओल्ड पासवर्ड यस, क्रेडेंशियल. चेंज करने के बाद. ठीक है, तो वो भी हमको चेंज, कभी कभी क्या होता है कि यूज़र जाता है, लॉगिन करता है, पासवर्ड चेंज कर देता है, और नए वाले हो पासवर्ड से और नए पासवर्ड से लॉगिन ही नहीं होता कभी कभी, नया हुआ तो. नया पासवर्ड चेंज करने के बाद भी नहीं होता, ऐसा भी होता है ना कभी कभी, इसीलिए. तो फिर वो ओल्ड पासवर्ड डालता है, तो ओल्ड पासवर्ड में भी दो सिनारियो होती है. तो ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन भी होता है, और कभी कभी लॉग आउट, लॉगिन भी नहीं होता है ओल्ड पासवर्ड से, और नया पासवर्ड भी भूल जाते हैं, वो भी नहीं होता. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पासवर्ड वो नया चेंज किया है तो ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन नहीं होना चाहिए, और अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है तो न्यू पासवर्ड से ही लॉगिन होना चाहिए. ठीक है, और उसमें अगर आपने पासवर्ड चेंज कर दिया और नया पासवर्ड से आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हो पासवर्ड चेंज करने के बाद, दिस इज द बग. ठीक है, सो वी नीड टू गो फॉर द डेटाबेस टेस्टिंग नाउ. उस टाइम पे हमको जो डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर हुई है वहाँ से चेक करना पड़ेगा फिर, कि जो पासवर्ड फील्ड डाली है, मतलब न्यू पासवर्ड जो है वो बराबर है कि नहीं, तो हमको डेटाबेस टेस्टिंग में चेक करना पड़ेगा. ठीक है, सो यू कैन राइट योर ओन वे. ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो स्टेप्स वगैरह, और ये वाले स्टेप्स. ओके, इम्पोर्टेंट क्या है? टेस्ट केस इम्पोर्टेंट ये है, देखो, इम्पोर्टेंट ये है, ये आपके क्लाइंट ये देखते नहीं पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है. ठीक है, ये खुद के लिए है आपको. ठीक है, अगर इनकेस अगर कुछ मालूम है क्या, अगर पास नहीं होती है, टेस्ट केस फेल होती है, जो फेल होती है वो देखते हैं फिर. और ये क्या करेंगे, स्टेप्स है ना, ये टेस्ट हम कॉपी करते हैं और डायरेक्टली जीरा में अपलोड कर देते हैं टेस्टर के लिए. ओके, सो मान लीजिए कि ये हमारी फेल हो गई है, इसको हम कॉपी करते हैं सीधा, और उधर स्टेप टू रिप्रोड्यूस में लिख लेते हैं कि ये बग आ गया है, वी नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स अगेन. ओके, ये स्टेप्स फॉलो करो तो आपको बग दिखेगा और आप चेक करो. ठीक है, सो इसको बोलते हैं स्टेप टू रिप्रोड्यूस. तो ये फेल होती है तब वो काम में आ जाता है कि ये ऐसे ऐसे जाना है, इसलिए हम भूल जाते हैं स्टेप्स कैसे कैसे जाना था, तो इसलिए लिख के रख देने का. तो ये रहता है. ओके, टेम्पलेट्स अवेलेबल रहते हैं उसके हिसाब से. ओके, तो ये टेस्ट केस पता चल गया आफ्टर चेंजिंग द पासवर्ड, ये भी हमको वैलिडेट करना है. नाउ वैलिडेट लॉगिन इन application, closing the browser without logging out and opening the application in the browser again. ओके, तो अगर आपने लॉगिन किया एप्लीकेशन पे और ब्राउज़र को क्लोज कर दिया विदाउट लॉग आउट, और आपने ब्राउज़र ओपन किया, उसमें वही एप्लीकेशन ओपन की, तो क्या होना चाहिए? एंटर दी पासवर्ड का आना चाहिए, हाँ, तो लॉगिन. लॉगिन नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब वो आना नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका जो यूज़र एंड पासवर्ड स्टोर हो गया है. ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए. हाँ, सो एक्सपायर्ड रिजल्ट देखो सबसे पहले. सो हमारा सेशन आउट होना चाहिए. ठीक है, लॉगिन सेशन शुड बी स्टिल मेंटेन्ड एंड यूज़र नॉट गेट लॉग आउट. ठीक है, तो एक्चुअली लॉग आउट नहीं होना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि हम आपने लॉग आउट पे क्लिक नहीं किया है, तो आपका ऑलरेडी सेशन स्टार्ट है वहाँ पे, वही ब्राउज़र पे. ओके, नॉट अ डिफरेंट ब्राउज़र. जैसे अगर आपने मोजिला पे है, मोजिला पे आपने क्लोज कर दिया लॉगिन करके, तो वो बोलता है कि जब आप मोजिला ओपन करोगे तो लॉगिन ही दिखना चाहिए. ओके, तो लॉग आउट नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है, क्योंकि उसका सेशन
चालू रहना चाहिए वहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द नहीं तो हमने ब्राउजर क्लोज करके ओपन किया तो भी लॉगिन ही दिखना चाहिए क्या? हाँ, मतलब जब आप उस पर्टिकुलर यूआरएल पे जाओगे, हम्म, यूआरएल पे एप्लीकेशन पे, तो लॉगिन दिखना चाहिए आपकी एप्लीकेशन में, क्योंकि उसका सेशन एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना मतलब है। प्रॉपरली जब तक लॉग आउट नहीं करता है लॉगिन तब नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब हम ब्राउज़र वगैरह क्लोज कर देते हैं और वही ब्राउज़र ओपन करते हैं, वही हम यूआरएल डालते हैं, तो जो हाई सिक्योर एप्लीकेशन रहती है ना, तो लॉग आउट हो जाती है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग में। लॉग आउट हो जाता है, मैंने भी बहुत सा यूज लेकिन किया है जब हम बैंकिंग। ई कॉमर्स के साइड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, उसमें लॉग आउट नहीं होता है, हाँ, ठीक वो है। लॉगिन तो दिस इज वो लॉगिन अकॉर्डिंग टू द एफआरएस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्योंकि यूजर चिढ़ जाते हैं ना, है क्या नहीं, बार बार और लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, हम कह रहे क्या, अब पैसे का बैंकिंग का अकाउंट थोड़ी ना है और लॉगिन करूँ, ठीक है। इसीलिए क्योंकि उनको क्या है कि उनको कस्टमर बनाना है। तो अगर आपने लॉगिन किया अमेजोन पे और आपने ब्राउजर को क्लोज कर दिया और वही आपने ब्राउजर ओपन कर दिया, तो आपका लॉगिन दिखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सो जब तक लॉगआउट पे क्लिक नहीं करता तब तक वो लॉगआउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फोर्सफुली लॉगआउट किया। उनका हाँ, सही। ठीक है, तो उनके लिए है। अगर वही अगर आप यूजर बैंक के लिए करेंगे ना, बिल्कुल नहीं, नो एलिजिबल, हाई सिक्योरिटी, बैंक के लिए एलिजिबल क्लोज किया बिल्कुल तो नहीं रहेगा। क्लोज करो कुछ भी करो, ये सेशन चलता है, इस सेशन के अंदर, इस टाइम के अंदर ही आपको पेमेंट करना है बस। अगर नहीं करते हो या फिर आपका क्लोज करते हो तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, जब आप और आपको लॉगिन करना है तो और यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेटा में रीड नहीं करता स्टेप्स वगैरह, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। देन वैलिडेट द टाइम ऑफ द लॉगिन सेशन। ओके, सो लॉगिन सेशन का कुछ टाइम आउट होगा, वो भी टेस्ट करना है। सो जैसे अगर आपने लॉगिन बटन पर क्लिक किया और अपन ने कुछ नहीं किया, विदाउट परफॉर्मिंग द एनी टास्क, अगर इधर उधर कुछ भी कहाँ पे भी क्लिक नहीं किया, हमने लॉगिन करके रख दिया, तो 30 मिनट के अंदर वो लॉग आउट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। हो सकता है बैंकिंग एप्लीकेशन में 1 मिनट के अंदर या फिर 30 सेकंड के अंदर ही लॉग आउट हो जाएगा। हाँ, तो दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट, यूजर शुड ऑटोमेटिकली गेट लॉग आउट विद द प्रॉपर मैसेज स्टेटिंग दैट योर सेशन गॉट एक्सपायर। लॉगिन करके रख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, 30 मिनट के लिए। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं रहता है, हाँ? बैंकिंग में भी सिक्योर रहते। तो मेरा कहने का मतलब है कि लॉगिन में ऐसा सोचो, क्योंकि कोई भी लॉगिन के टेस्ट केसेस पूछेंगे तो वही नॉर्मल नॉर्मल टेस्ट केसेस बता देंगे, लेकिन आपको ये वे से सोचेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा गिरेगा, ठीक है। लॉग आउट सेशन, सेशन पे, हाँ, ब्राउजिंग बैक एंड फॉरवर्ड बटन पे सोचो, पासवर्ड हाइड होना चाहिए, पेज सोर्स पे विजिबल नहीं होना चाहिए। बाकी ये चिल्लर है, ठीक है, स्टार्टिंग के ये कोई भी बता देता है, ठीक है, पहले तो वही सोचते हैं, ठीक है। सो टाइम आउट, हाँ, वैलिडेट द यूजर एबल टू नेविगेट टू द डिफरेंट पेजेस फ्रॉम द लॉगिन पेज। अब वहाँ पे जितने भी कुछ बटन्स हो गए वो नेविगेट होने चाहिए। So user should able to navigate to the register account, or user should able to navigate to the appropriate page. So that should not be the same for the all the scenario, ठीक है। ये जो टेस्ट केस है बाकी के लॉगिन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे कैसे कि इधर नेविगेशन अवेलेबल है ना, इसके लिए वो वैलिडेट है, ठीक है, वो है वो टेस्ट केस, ठीक है, उस प्रॉपर इस पे जाना चाहिए। देन वैलिडेट द डिफरेंट वेज ऑफ नेविगेटिंग टू द लॉगिन पेज, ठीक है। अब वहाँ पे डिफरेंट वे अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक होने के बाद भी लॉगिन पे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक होने के बाद लॉगिन पे आना चाहिए, और यहाँ पे क्लिक होने के बाद भी लॉगिन पे आना चाहिए। तो यहाँ पे न्यू पे नहीं जाएंगे हम, वेरियस वे होंगे जो जो लिंक है, ठीक है, यहाँ पे या फिर नीचे होंगे सबसे लॉगिन का, ओके, माय अकाउंट समथिंग एनीथिंग, ओके। सो ये, हाँ, यहाँ पे भी आना चाहिए, तो वो लिंक चेक कर रहे बस। Validate the breadcrumb, page heading, page title and page URL of the login page. Breadcrumb मतलब ये वाला, ठीक है। सो ये देखो ये वाला, ठीक है। सो ये ब्रेड क्रम हो गया। देन उसका यूआरएल चेक करो वही प्रॉपर है क्या नहीं, ओके। सो यूआरएल में जैसे अब इस पे जा रहे हैं हम लॉगिन पे, तो ये लॉगिन पेज का यूआरएल होना चाहिए, ओके।
ब्रेड कम, व्यू, ओके, पेज टाइटल, पेज यूआरएल, ये बराबर होना चाहिए. So you can check here the page title. This is what page title, account login. Okay, check here page title. दिखा क्या? हम्म. हाँ, ये पेज टाइटल है. ठीक है, पेज टाइटल भी वही होना चाहिए जिस पेज पे आप हो. अच्छा, वो पेज टाइटल ब्राउजर पे. ठीक है, तो मैं अगर अभी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है पेज टाइटल क्या है. रजिस्टर अकाउंट. तो ये भी आपको चेक करना है. ठीक है, सो यू हैव टू थिंक लॉजिकल, पूरा आपको अच्छे से थिंक करना है. मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के दिनों में 5 दिन के पहले एक पीपीटी दिखाए थे कि आपके टेस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ओके, सो गुड टेस्टर किसको बोलते हैं, है ना. तो उससे लॉजिकल थिंकिंग, हाँ, एनालिटिकल थिंकिंग, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी टेस्ट करना है. मैं सिनारियोज मतलब आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे टेस्टिंग मतलब करना पड़ता है आपको लॉगिन पे. वैलिडेट द यूआई ऑफ द लॉगिन पेज. अब यूआई मतलब वही यूजर यूजर इंटरफेस, वीड हाइट. ठीक है, यूआई. ये इसकी वीड हाइट, ओके, ये साइज, हाँ, लुक एंड फील, कलर, बटन, एवरीथिंग. ठीक है, एज पर द होना चाहिए. वैलिडेट द लॉगिन फंक्शनलिटी इन ऑल सपोर्टेड इन्वायरमेंट. तो ये कॉमन टेस्ट केस रहेगा कि कोई भी इन्वायरमेंट में वो यूज़ होना चाहिए. ओके, इस इन्वायरमेंट विंडोज़ पे हो रहा है लेकिन इस पे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो दिस इज व्हाट पॉसिबल टेस्ट केसेस फॉर द लॉगिन. ठीक है, अगर आपने सारे टेस्ट केसेस सिनेरियो लिख लिए हैं तो उसके बाद आपको क्या क्रिएट करना है, आरटीएम. ठीक है, अब जब भी आपने आरटीएम भी क्रिएट कर लिया आपने, आपको पता चला कि सब रिक्वायरमेंट आ गई है, सिनेरियोज भी लिखा है, टेस्ट केसेस भी लिखे हैं, अभी एक आप क्या करोगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एग्जीक्यूशन ऑफ द टेस्ट केसेस. ओके, सो टेस्ट केसेस लिखा है, देन रिव्यू हो गया है और आरटीएम भी क्रिएट हो गया है. आरटीएम जो हम टेस्ट केसेस लिख रहे हैं वही है ना आरटीएम. हाँ, पूरी रिक्वायरमेंट आई कि नहीं, यस, वहाँ से रिक्वायरमेंट आती है आरटीएम से. आरटीएम से रिक्वायरमेंट आती है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं सारे टेस्ट केसेस में, वहाँ पे चेक करना है. नई रिक्वायरमेंट आ गई, नई यूजर स्टोरी आए तो नए टेस्ट केसेस, उसी के फंक्शनलिटी में नए टेस्ट केसेस ऐड हो जाएंगे. जैसे मुझे लॉगिन, हाँ, लॉगिन बटन पे रीसेट बटन चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट आ गया. फिर क्या करेंगे, हमने तो रीसेट बटन के लिए लिखा है नहीं टेस्ट केस, लिखा क्या है पे लॉगिन पेज पे, नहीं लिखा ना. हाँ. हाँ, तो वहाँ पे वही. रिक्वायरमेंट आएंगी, आरटीएम पे चेक करना है आपको. ठीक है, तो तो उसके लिए वो फंक्शन सर, क्या बोलते हैं, रीसेट बटन के लिए भी 2-4 टेस्ट केसेस आपको लिखने पड़ेंगे. अच्छा. ठीक है, तो सही. वी आर गोइंग टू चेक फ्रॉम द आरटीएम. ठीक है, सो सब कुछ हो गया अभी. ठीक है, तो अब क्या करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेज. एग्जीक्यूट करेंगे. यस, सो एग्जीक्यूट करने के पहले हमको करना है कि बिल्ड डिप्लॉय करना है. ओके, सो दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट सेटअप एंड बिल्ड डिप्लॉयमेंट. ओके, जो बिल्ड मतलब सॉफ्टवेयर. ठीक है, हमारे पास कोड आना चाहिए. ठीक है, सो कोड हमको कहाँ से मिलेगा, गिटहब से. गिटहब क्या है, रिपोजिटरी है. वहाँ पे सब डेवलपर काम करते हैं और उसको कमिट करते कोड को एक सर्वर पे. ठीक है, फिर हमको एक यूआरएल मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप बोलेंगे कि ये स्टेबल बिल्ड है, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन टेस्ट नाउ ऑल दिस टेस्ट केसेस. सो एनवायरमेंटल सेटअप मीन्स व्हाट, कि आपके लोकल मशीन में करना पड़ता. ठीक है, सो अगर वो जावा का एप्लीकेशन है तो आपको जावा के गाइडलाइन मिल जाएगा कि जेडी के वर्जन नंबर मिलेंगे आपको, जेडी के वर्जन ये आपको इंस्टॉल करना है. उसके बाद आपको इक्लिप्स यूज़ करना है, उसके बाद आपको अपाची टॉमकैट सर्वर यूज़ करना है, समथिंग समथिंग. ओके, देन यू आर गोइंग टू डिप्लॉय योर बिल्ड देयर एंड यू कैन एग्जीक्यूट दैट वन. ओके, तो ये हो गया वन वे. ओके, नो नॉट इज वन वे, सो एवरीवेयर दिस इज गोइंग टू बी हैपन. ठीक है, यही क्योंकि आपको जो बिल्ड डिप्लॉय करना है आपको लोकल मशीन पे ही रन करना है, लोकल पेज. ओके, लोकल मशीन पेज. ओके,
सो नाउ वंस अगेन, ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरा जावा का प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो मेरे लिए चाहिए कि आईडी दैट इज नोन एज नेटबिन आईडी है, समटाइम्स रिक्वायर्ड इक्लिप्स आईडी। आईडी मतलब होता है कि एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, सॉरी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करूँगा, जो हमको कोड मिला है पीएचपी का रहेगा, तो पीएचपी माई एडमिन सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो ये मैं एज पर द रिक्वायरमेंट, कोई भी आईडी रह सकती है, नेटबिन रह सकती है, इक्लिप्स रह सकती है, कोई भी रह सकती है जो है वो। तो हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। दिस आर द प्रोजेक्ट के मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। एक कंसिडर करो कि ये हमारा ये वाला है, क्या बोलते हैं, जो चल रहा है हमारा वो है, तो ये प्रोजेक्ट मेरा अलग है, बट यू कैन कंसिडर दैट वन कि आपको बिल्ड मिला है, तो दिस इज योर बिल्ड। ओके, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम इज द बिल्ड, ये है आपका बिल्ड दैट कंटेन्स द ऑल दिस सपोर्टेड फाइल्स। ओके, सो बिल्ड नाम का फोल्डर है यहाँ पे, जहाँ पे सपोर्टेड फाइल्स अवेलेबल है। लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी फोल्डर में लाइब्रेरी के है एनबी प्रोजेक्ट दैट इज नेटबिन प्रोजेक्ट। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो नेटबिन के आईडी में बना है। एसआरएस मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, सो सारे जावा, एक जावा का फोल्डर है, जावा का एप्लीकेशन है, तो वेब मतलब उसमें सारे पेजेस रहेंगे। ओके, सो यू नो दैट इज HTML पेजेस, JSF पेजेस, एवरीथिंग, ठीक है, सारे पेजेस अवेलेबल है। तो ये हम डायरेक्टली डबल क्लिक करें तो ओपन नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड सर्वर। ओके, ये जावा सर्वर पेजेस है, जावा के एप्लीकेशन इंस्टॉल होना जरूरी है, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन नहीं होगा। HTML के पेजेस डायरेक्टली ओपन होते हैं। ओके, ओनली ब्राउजर इज रिक्वायर्ड। सो टू ओपन दिस बिल्ड, ये बिल्ड हमको ओपन करने के लिए हमको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो दिस इज सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, दिस वन। सो ये फाइल, ओके, न्यू प्रोजेक्ट, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट। okay, you can import a project or you can click on the new project and you can select. Okay, so you can click on this project here and open the project. Okay, click on the open project and where you kept your build. Okay, that is you downloaded the build, you can check here where you downloaded the build. Suppose you are downloaded the build from the desktop and click on this ready project, and this is what blood bank management, and this is your build. Okay, you can check the symbol also, ठीक है, दिस इज वन सिंबल, ठीक है, गोल वाला, वेब वाला आ गया। सो दिस इज वेब एप्लीकेशन, यू कैन क्लिक ऑन द ईयर एंड क्लिक ऑन द ओपन प्रोजेक्ट, सो योर प्रोजेक्ट गेट डिप्लॉयड इन योर लोकल मशीन, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट जो है बिल्ड हो डिप्लॉय हो गया आपके लोकल मशीन में, ठीक है, डिप्लॉय हो गया। ओके, अभी इसको क्या करना है, हमको टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने हैं और हमको एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। ओके, सो जो भी लाइब्रेरी रिक्वायरमेंट है, डेटाबेस को कनेक्ट हुआ कि नहीं, ये भी हमको टेस्ट करना है सबसे पहले। और ये हमने फ्रंट एंड डाल दिया है यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद आपको डेटाबेस भी की फाइल मिलेंगी, डेटाबेस के फाइल पे डेटाबेस में लोड करना है आपको। ओके, सो मेक श्योर दैट डेटाबेस कनेक्टेड इज स्टेबल एंड देन यू आर गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम बिल्ड को रन करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ भी हो सकता है, मैं आपको आईडी दिखा रहा हूँ, नेटबिन, ये नेटबिन नहीं रह सकती, बाकी और इक्लिप्स रह सकती, कुछ भी रह सकती है। और ये आपको आपको चार्ट मिल जाएगा, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, सब कुछ कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा वर्जन यूज़ करना है, सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो जब हम रन करेंगे तो सबसे पहले क्या ओपन होगा, क्या ओपन होना चाहिए, कौन सा पेज ओपन हो सबसे पहले? हम्म, होम पेज ओपन होना हाँ, चाहिए। वेरी गुड। सो जो होम पेज है वो सबसे पहले ओपन होना चाहिए। अगर होम पेज ओपन नहीं हो रहा तो हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे पहले से बिल्ड, समझे कि नहीं, बिल्ड हम रिजेक्ट कर देंगे इधर से कि आपका होम पेज क्रैश हो रहा है। तो दिस इज व्हाट योर चैलेंजेस, आपको पूछेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेस इन योर डूइंग द टेस्टिंग, ठीक है। तो समटाइम्स द बिल्ड इज गेटिंग एंड समटाइम्स यू आर गोइंग टू रन द बिल्ड बट इज गेटिंग द क्रैशेस द एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी देखो ऑटोमेटिकली हमारा एक लोकल मशीन जो है, लोकल मशीन पे हमारा बिल्ड ओपन हो गया। डिप्लो मतलब सर्वर को डिप्लॉय होने के पहले हम लोकल मशीन पर रन करते हैं।
ठीक है, लोकल होस्ट, दिस इज पोर्ट नंबर एंड दिस इज आवर URL, यू कैन से दिस इज आवर URL। ओके, तो हमारा बिल्ड ओपन हो गया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द एप्लीकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेक हियर व्हाट टाइटल, सो हियर इज व्हाट insert the title, this is our bug। okay, so here we can write here the home and your application name should be display here, okay, in the title। ठीक है, so now whatever the test cases you are written here, so now one by one you can test this application, test cases। ठीक है, execute this test cases। okay, so now the first test case क्या, validate the login into the application using valid credential। okay, so test steps है कि आप चेक करो, ओके, एडमिन पे है या किधर जाओ एंड यू कैन राइट हियर द वैलिड क्रीडेंशियल। ठीक है, एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, सो दिस इज एडमिन होम पेज इज डिस्प्लेइंग, सो आवर टेस्ट केस इज गेट पास। ठीक है, ये एप्लीकेशन दूसरी है, ये इसके एप्लीकेशन दूसरी है। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट इज व्हाट वी आर गेटिंग द सेम। ओके, यस, that is what our same actual result we are getting and the result is pass। okay, and any comment, no comment। ठीक है, समझ में आ गया अभी, ये एप्लीकेशन ये अलग है। हम ओपन कार्ड के लिए लिख रहे थे, इसका हाँ, कुछ है नहीं क्या, बिल्ड डिप्लॉयमेंट का ये जावा देखो ना, का? ये देखो ना, इधर ये ना बिल्ड, नहीं, ये ये है जो ना इधर, आपने ये देखो। अभी इसका करके दिखाया ना, हाँ, तो आपको मतलब बिल्ड चाहिए तो ओपन कार्ड के एप्लीकेशन पे जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको फ्रंट एंड है ना, ये बैक एंड दिखाना पड़ेगा। उसका अगर बिल्ड चाहिए आपको तो मिल जाएगा, डोंट वरी। सो वहाँ पे डाउनलोड करके करो या फिर आप डायरेक्टली इधर ही टेस्ट करो, मतलब लाइव सर्वर पे आप टेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर वैसी होती है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, आपको लोकल मशीन में डालना पड़ता है और टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, डाउनलोड करके फिर और 10 दिन के बाद आपके पास दूसरा बिल्ड आएगा, तो इसको डिलीट कर देना, मतलब साइड में रख देना, वो डिलीट नहीं कोड करना। तो देते होंगे ना कि कैसे उसे डिप्लॉय करना है ना? बिल्कुल, मैंने आपको वही बताया ना आपको, कि जैसा एप्लीकेशन है, अगर वो एप्लीकेशन डॉट नेट पे बनी है तो डॉट नेट का सॉफ्टवेयर चाहिए आपको रन करने के लिए, एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब मैंने जावा की एप्लीकेशन है तो जावा का एनवायरनमेंट चाहिए मुझे, एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा ना। एनवायरनमेंट सेटअप मतलब अ, जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है वो हमको इंस्टॉल करना है, जैसे जावा के लिए जेडीके इंस्टॉल करना है, नेटबीन इंस्टॉल करना है। ओके, पीएचपी के लिए मुझे पीएचपी माई एडमिन इंस्टॉल करना है, माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है डेटाबेस के लिए, है ना, डेटाबेस वगैरह सब इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिप्लॉय करना है, फिर टेस्ट करना है। ओके, ये यूज़र गाइड सब मिल जाएगा आपको, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है वो एप्लीकेशन कौन सा इस पे बनी है। अगर वो डॉट नेट पे बनी है तो डॉट नेट के सारे सॉफ्टवेयर आपको दे देंगे। सीधा सिंपल है, अगर आपको पाइथन का प्रोग्राम रन करना है तो आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। आपका सी प्रोग्राम अगर आपको रन करना है तो आपके कंप्यूटर में सी का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, टर्बो सी। जावा का प्रोग्राम अगर आपको रन करना है आपके कंप्यूटर में तो जावा का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, कंपाइलर। वैसे मुझे जो जिस पे कोड लिखा है वो अगर रन करना है एप्लीकेशन, तो उस जिस पे कोड लिखा है वो सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, तो सबके लिए आपने लॉगिन के लिए वर्क करेंगे, दूसरा डाउनलोड करेंगे वो रजिस्ट्रेशन के लिए वर्क करेगा। ओके, लेकिन सब कुछ होने के बाद जब हम उसको रियल टाइम में डिप्लॉय करते हैं, जैसे ये है रियल टाइम में डिप्लॉय हो गया है सर्वर पे, ये रियल टाइम है ना, एनीवन इज एक्सेसिंग हियर, तो यहाँ पे वो अवेलेबल रहता है, जो डेवऑप्स इंजीनियर जो रहते हैं वो उसको जो जो भी है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं और वहाँ पे वो डिप्लॉय करते हैं सभी। then this application will get live, will become a live। ओके, सो इसमें कुछ डाउट है और पूछो, अभी जितने डाउट है पूछो अभी इसके रिगार्डिंग, बिल्ड के रिगार्डिंग। प्रोसेस के रिगार्डिंग अभी आपके माइंड में जो डाउट है, सो आपको अभी डर लग रहा है कि मैं 3 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस या फेक एक्सपीरियंस कैसे बताऊँ, तो मुझे क्वेश्चन पूछो अभी। अभी आपको लगता है कि नहीं कि मैं सच में काम कर रही हूँ या कर पा रही हूँ टेस्टिंग में।
आपको सिर्फ प्रोसेस होना पता होना चाहिए, बस उनको कुछ लेन देन नहीं कि आप कौन से डोमेन पे काम कर रहे हो, लेकिन जिस डोमेन में आपने काम किया आपको उसके टेस्ट केसेस कैसे लिखते हो, टेस्ट सिनेरियो कैसे लिखते हो वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो वो पता होना चाहिए। हम्म, तो अभी इसके रिगार्डिंग आप मुझे जो भी डाउट्स है वो पूछो मुझे। वही रहेगा ना, मतलब बिल्ट डिप्लॉयमेंट के लिए जो भी लैंग्वेज में लिखा है, सपोज बिल्ट, उसका सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ना हम्म। मशीन में। तो करेक्ट। वो तो देते होंगे ना उसमें कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कैसे करेक्ट। इंस्टॉल करना है। करेक्ट। They will provide everything. Software also provided. You no need to download the software from anywhere. Company login will provide all the related software. और वो वर्चुअली आपके मशीन में इंस्टॉल करके वही देंगे, आपको नहीं करना है। वो करके देते हैं फिर। हाँ। अब एमएनसी में तो ऐसा ही होता है। आईटी कंपनी में तो हमको एक्सेस भी नहीं देते, वही आईटी टीम को बताना पड़ता है, आईटी टीम ही हमको इंस्टॉल करके देते हैं उनके लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप उनका रहता है ना, हमारा थोड़ी रहता है। ठीक है, और जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो वो वही इंस्टॉल करके देते हैं, उनका एक्सेस रहता है, लैन में कनेक्टेड रहता है, क्योंकि कंपनी के मशीन में हम कुछ भी कर नहीं सकते। नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वही हमको प्रोवाइड करेंगे। अगर वो इंस्टॉल करके नहीं देते तो लेकिन वो सिक्योर लिंक देंगे। ठीक है, दे विल प्रोवाइड द लिंक्स, यू कैन डाउनलोड द माई एसक्यूएल फ्रॉम। हमने अगर माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ किया है बैकएंड में, तो माई के ये लिंक दे दे, लेकिन वो लिंक कैसे रहेंगे कि दो टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं, एक स्टैंडर्ड रहते हैं और एक कौन से रहते हैं, कमर्शियल रहते हैं। हम्म, ठीक है कि नहीं, तो स्टैंडर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, जो हम स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वो अच्छा। पेड नहीं रहते, और कंपनी पेड वर्जन यूज़ करते हैं, अच्छा। तो पेड वर्जन ही देंगे ना आपको इंस्टॉल करने के लिए। ओके, तो वही वैसे टाइप के आपको लिंक्स देंगे, बोलेंगे यहाँ से इस लिंक से आप डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, परफेक्ट लिंक देंगे। Okay, everything configuration, so that is what environmental setup, that is known as configuration setup. तो समटाइम्स क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं कि एनवायरमेंटल सेटअप गलत हो सकता है, तो उस टाइम पे हमारा भी ये भी हमने चैलेंजेस फेस किए हैं। ओके, सो जैसे हमने बिल डिप्लॉय कर दिया, एनवायरमेंट कर दिया सेटअप और बिल डिप्लॉय कर दिया, लेकिन वो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रही है, क्रैशेस द एप्लीकेशन। तो क्या क्या हो सकता है कि हमारा एनवायरमेंट सेटअप गलत हो गया है क्या नहीं, तो करप्ट हो गया है डाउनलोड करते समय या इंस्टॉल करते समय, ये भी हो सकता है। दैट इज अ चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस। ओके, मतलब बताना पड़ता है कि हमने ये चैलेंजेस फेस किए। मैनेजर राउंड में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेस ड्यूरिंग द मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं हमको। ओके, एफआरएस बनता है, टेस्ट प्लान क्रिएट करते हैं, राइटिंग टेस्ट केसेस सिनारियो, रिव्यू करते हैं आरटीएम, देन वी डू द environmental setup and build deployment in your local machine. Then we execute the test cases, then we go for the bug reporting and tracking. After that we go for sanity testing, retesting. अब टेस्टिंग कब करते हैं, अब जब आप टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तब, दिस इज ऑल्सो द टेस्टिंग। एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस नथिंग बट द टेस्टिंग ना। ओके, जब टेस्ट केसेस आते हैं, लिखते हैं मतलब रन करते हैं, तो उसमें बग आता है, बग आने के बाद उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ द सॉफ्टवेयर, बग रिकॉर्डिंग वी हैव द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आईटी इंडस्ट्री की टेस्टिंग में। और ये थ्योरेटिकली हमने बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने अभी देखा है। अभी हमारा क्या चालू है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन, और ये बाकी है अभी हमारा। तो समझो कि हम समझे। बैग रिपोर्ट कर दिया है, सैनिटी टेस्टिंग मतलब अब वही टेस्टिंग हो गई है, सैनिटी टेस्टिंग। ओके, रीटेस्टिंग मतलब जो सैनिटी टेस्टिंग इज द पार्ट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, और रीटेस्टिंग मतलब जो बग रिपोर्ट किया है हमने उसको दोबारा टेस्ट करेंगे, रीटेस्टिंग। अब ये आपको बोल बच्चन देना है, बस ऐसे बोलना है, बाकी सब हम ऐसे ही करते हैं। अब मैंने टेस्ट केस उठाया दूसरे प्रोजेक्ट का, अप्लाई किया दूसरे प्रोजेक्ट, क्या फ़र्क गिर रहा है, उनको क्या पता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, कुछ नहीं, जो आप बोलेंगे वो उनको पता है, जो आप रिज्यूमे में लिखेंगे वो उनको पता है, दैट्स इट। और क्या पता है उनको। So make confidence like that you are working in the
आईटी इंडस्ट्री एज अ टेस्टर, बस ऐसा वर्क एनवायरमेंट किया हमने, वर्क किया है, टेस्ट केसेस लिखे हैं मैंने। और मुझे तो ज़्यादा टेस्ट सिनारियो पे वर्क करने के लिए नहीं मिला, मुझे सिर्फ टेस्ट लिखने के लिए, टेस्ट केसेस लिखने के लिए मिला है और एग्जीक्यूट करने के लिए मिला है और बग रिपोर्ट किया है। इतना बोल सकते हो आप। 1 महीना 2 महीने तो प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग में जाता है भाई। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट छटाक भर के नहीं रहते, बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं। ओके, हम्म, तो 1 2 महीने केटी सेशन, ये सेशन बहुत चलते हैं। फिर कहाँ चालू हो जाते हैं एक एक मॉड्यूल पे वर्क करना, तो बोल सकते हो आप कि मैं टेस्ट केसेस लिखना चालू किया। लेकिन आपको नॉलेज ज़्यादा होना और बोलते समय कम बोलना है। हम्म, ठीक है, मतलब मैंने ये किया वो किया ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन नॉलेज ज़्यादा होना। लेकिन मैंने टेस्ट केसेस लिखे और एग्जीक्यूट किया और बग रिपोर्टिंग किया, लेकिन बाकी का मुझे टेस्टिंग का सारा नॉलेज है। ओके, टेस्टिंग के पूरे क्लियर से मेरे क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी मेरी सब क्लियर है, ये पता होना और वही कॉन्फिडेंस उनको देना है। मुझे टेस्टिंग के बारे में, आईटी टेस्टिंग के बारे में, मैनुअल टेस्टिंग के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैंने सिर्फ इस पे वर्क किया है, ऐसा उनको बताना है। ओके, सो मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट, रिग्रेशन टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेस्टिंग। ओके, ये सब कुछ है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे आरटीएम क्या है, ये क्या टेस्ट सिनेरियो, क्या टेस्ट केस क्या है। ओके, सो आपको बिल्ड कैसे मिलता है, बिल्ड कैसे डिप्लॉय करेंगे, टेस्ट कैसे करते थे, कौन सा टूल यूज़ किया आपने जीरा रिपोर्टिंग और बग के लिए, तो आप बोलेंगे जीरा टूल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेशन अभी जीरा पे रहेगा, ये हमारा लास्ट सेशन रहेगा। ठीक है, जीरा टूल पे 2 सेशन वहाँ पे, और जो रिमेनिंग बचा है हमारा और इंटरव्यू क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो 2 3 सेशन हमारे बाकी है। ये हफ्ते में हो जाएगा क्या बिल्कुल कंप्लीट? बिल्कुल हो जाएगा, सैटरडे के पहले मुझे कंप्लीट करना है। आज का कौन सा डे है? हाँ तो ट्यूसडे है ना, तो मुझे बस Tuesday। फ्राइडे तक ये 3 दिन में कंप्लीट करना है। कल जीरा कंप्लीट करूंगा मैं जल्दी। ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना है तो ले सकते हैं आप, 7 बजे से लेना होगा तो। नहीं, मैं मुझे करना ही चाहिए क्योंकि फिर मैं फ्री नहीं रहूँगा सैटरडे से, इसलिए 3 दिन के अंदर ही मुझे कंप्लीट करना है और वो हो जाता है। जीरा 1 दिन में हो जाएगा। कल रिपोर्टिंग जीरा स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, जीरा में 2 बातें होती है, एक है टास्क मिलते हैं और दूसरा होता है कि रिपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो मैं उस जीरा को मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके देना है आपको। हाँ, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कैसा कि आपको टास्क, जैसे डेवलपर को टास्क मिलते हैं, टेस्टर को भी टास्क यहाँ पे मिलेंगे। हम्म, एक होता है टास्क मैनेजमेंट, एक दूसरा होता है डिफेक्ट रिपोर्टिंग। मतलब उसी में आप रिपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर डिफेक्ट रिपोर्टिंग के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, HVPLM वगैरह, लेकिन आपको हम्म, जीरा ही बोलना है क्योंकि आपने अजाल यूज़ किया है, बिकॉज जीरा इज़ अ अजाल मैनेजमेंट टूल। अजाइल के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो जीरा फॉलो करता है। मतलब अजाइल में जो भी प्रोडक्ट ओनर, ये ओनर, ऐसा वैसा स्टोरी हमने बहुत सीखा ना अजाइल के बारे में। हाँ, अजाइल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्लियर करो। तो हम अजाइल मैनेजमेंट टूल मतलब जीरा यूज़ करते हैं, और उसी में हम दूसरा, फिर जीरा में अगर हमको टास्क मिल रहे तो हम दूसरा टूल क्यों यूज़ करेंगे? जो बग आते हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए तो हम जीरा यूज करेंगे, क्योंकि उसमें फैसिलिटी है। तो ये जो हमने टेस्ट केसेस लिखे हैं, हम्म, टेस्ट सिनारियो, ये टेस्ट केसेस लिखे, यही हम उसको अपलोड कर सकते हैं जीरा में। ये पूरी फाइल टेस्ट केसेस की सेपरेट सेपरेट फाइल। ओके। ठीक है, ये हम अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी फायर नाम की प्लगइन यूज होती है उसके लिए। GZEPHYR, जी फायर। ओके, सो वहाँ पे टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, या फिर इधर से अपलोड करो, तो वहाँ पे जनरली हम इधर ही लिखते हैं और उधर से अपलोड कर देते हैं। और नहीं अपलोड किया तो भी कोई फ़र्क नहीं करता है, हम उसको ट्रैक करते रह के हमारे ये जो टेस्ट केसेस है हमारे सर्वर पे अपलोड करके रख देते हैं। ठीक है, सर्वर पे रहते हैं और एनी वन कैन व्यू दैट वन, क्योंकि बार बार हमारे लोकल मशीन पे नहीं रहते ये सब कुछ, क्योंकि हमको जो वर्क किया है हमको डेली अपलोड करना रहता है। अगर आज आपने 10 टेस्ट केसेस लिखे हैं तो उसको हम कमिट कर देंगे गिटहब पे, रिपोजिटरी में डाल देंगे, कंपनी के सर्वर पे डाल देंगे उसको, और सवेरे आ जाएंगे दूसरे दिन और उसको डाउनलोड करेंगे और उस पर लिखेंगे और उस पर डाउनलोड करेंगे, अपलोड कर देंगे।
या फिर वो ऑलरेडी सर्वर पे डॉक्यूमेंट रहेगा और आपको वही लॉगिन करके वहाँ पे आपको एडिट कर मतलब काम करना है। कैसे भी रह सकता है एज पर योर कंपनी। लेकिन आपका जो डेली टास्क है वो आपका कमिट होता है, ठीक है, कंपनी में कमिट होता है, कमिट मतलब जाता है कंपनी के पास, वो देना पड़ता है आज आपने क्या किया तो। ओके, सो वी हैव द सम टाइप पीपीटीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये समझ में आएगा वो बताइए क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है बस। हाँ आया, टेस्ट केसेस का आया मुझे समझ। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे वो बताइए अभी, अभी पूरा बताइए। अभी जब रिपोर्टिंग करेंगे ना तब पता चलेगा। इसमें अभी तक प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं यहाँ नहीं, तक। इसमें से समझा है। हाँ तो टेस्ट एग्जीक्यूशन तक नहीं है प्रॉब्लम, ओके, 7 स्टेप तक। बस दैट्स इट, इतना ही चाहिए, ठीक है, बाकी का हम देखेंगे। मतलब टेस्ट एग्जीक्यूशन हमने एक ही करके देखी ना अभी। हाँ तो टेस्ट एग्जीक्यूशन मैंने एक ही करके बताया, तो वही अब टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए आपको ये टेस्ट स्टेप फॉलो करने हैं ना, और यहाँ पे टेस्ट डेटा ये फॉलो करना है। टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है कि वही हमको प्रोसेसिंग एक्चुअल में का। करना है। हाँ अभी एक्चुअल में रन करके चेक करना है कि हमारी टेस्ट ये बिफोर बिल्डिंग होता है, टेस्ट केसेस टेस्ट सिनारियो बिफोर बिल्ड, मतलब बिफोर सॉफ्टवेयर बनने के पहले लिखते हैं सब कुछ चीज़ें हम। ये सब एनालिटिकल होता है ना। हाँ ये एफआरएस के डॉक्यूमेंट के कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम अपन सोचते हैं और लिखते हैं, और उसमें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी होता है, कुछ भी हो सकता है। फिर ये होने के बाद बिल्ड आने के बाद उसको हम उसको इसके हिसाब से रन करके देखते हैं कि एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये वर्क हो रहा है कि नहीं, टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, इच्छा नहीं हो रही। अगर हो रहा है तो देन पास, अगर नहीं हो रहा है तो फेल। ओके बस दैट्स इट, इतना ही चाहिए। और एक्सेल पे वगैरह बग रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो पुराने क्या बोलते हैं बग रिपोर्ट, वो हम जीरा में भी तो ट्रैक करते हैं, बग रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन जितने भी बग्स निकाले हैं उसको एक्सेल में भी मेंटेन करते हैं। ओके, सो सेंट्रल हो सकता है आपने जो बग निकाले वो है, या कंबाइन लोगों ने किया, एक एक ही ऐसी रह सकती है कि जिसमें मालूम है कि सब लोगों ने एक ही फाइल में डाल दिया। आपकी बग फाइल अलग होती है, उनकी अलग होती है, या फिर कॉमन हो सकती है कुछ भी। ओके, सो वी नीड टू गिव द सम बग आईडी आल्सो, ठीक है, बग आईडी देन डिस्क्रिप्शन देन स्टेप टू रिप्रोड्यूस। अब स्टेप टू रिप्रोड्यूस मतलब डेवलपर को हम बता रहे हैं कि ये करो, दोबारा करके देखो आपको ये दिख रहा है। ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होना है और एक्चुअल रिजल्ट ये होना है, हो रहा है, और हम उसको सेवेरिटी प्रायोरिटी देते हैं। तो सेवेरिटी प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं हम, बग को। मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो हम देते हैं बग को, है क्या नहीं, क्योंकि ये जो बग आया है वो कितना सेवियर है एज पर द ये कौन सी रिपोर्ट में, ये टेस्ट केस की रिपोर्ट में देखे ना हम। टेस्ट केसेस रिक्वेस्ट में जो प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं हम, प्रायोरिटी दे रहे हैं वहाँ पे टेस्ट केस में कि हमको कब एग्जीक्यूट करना है। प्रायोरिटी मतलब होता है कि व्हेन यू हैव टू फिक्स द डिफेक्ट, okay, when you are going to execute, that is on the priority basis. Severity means as a functional point of view। मतलब ये बग रिपोर्ट में देंगे ना हम हाँ, सेवेरिटी। हाँ जब बग रिपोर्ट कर रहे हैं ना सॉफ्टवेयर में, तब उस टाइम पे आपको सेवेरिटी एक्सेस देना पड़ेगा वहाँ पे। और जब हम यहाँ पे टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनारियो लिख रहे हैं, उस टाइम पे हम प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आपको ये कब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और टेस्ट केस टेस्ट प्लान के बारे में बोलना ही नहीं जब आपको सेवेरिटी प्रायोरिटी पूछते हैं, ठीक है। आपको बग के बारे में बोलना है, इशू के बारे में बोलना है। प्रायोरिटी मतलब होता है कि हाउ सोन यू नीड टू फिक्स, कब आपको फिक्स करना है, दैट इज ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। सेवरिटी मतलब होता है कि दैट इज अ फंक्शनलिटी इशू, कि उस पे क्या फंक्शनलिटी इशू हो गई जिसमें क्लाइंट का बिजनेस डाउन हो सकता है। अब सिवेरिटी के हिसाब से मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन किया है। ओके, माइनर सिवेरिटी, मेजर सिवेरिटी, ठीक है कि नहीं। तो हम बग रिपोर्ट करते समय हम बोलेंगे अरे यार अगर ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको मेजर सिवेरिटी, क्योंकि जो मेन डोमेन अपना ओपन कार्ड का मतलब ई कॉमर्स का ये होता है कि आपको
लॉगिन करना है, परचेस करना है और लॉग आउट होना है या समथिंग, तो ये हो ही नहीं रहा है फंक्शनलिटी। अगर ऐड कार्ड पे ऐड कार्ड हो ही नहीं रहा तो मेजर इशू हो गया ये, है क्या नहीं? तो दैट इज व्हाट फंक्शनल। सो वी आर गिविंग टू मेजर सिवेरिटी बिकॉज वी हैव टू मेजर सिवियर राइट। और जैसे पॉलिसी पॉलिसी पे क्लिक होने के बाद वो लिंक पे ओपन नहीं हो रहा है तो माइनर सिवेरिटी है, तो इसको प्रायोरिटी भी हम माइनर दे देंगे। सो एग्जांपल्स कैसे होते हैं? लो माइनर सिवेरिटी, लो प्रायोरिटी, ओके, मेजर मेजर प्रायोरिटी, ठीक है, क्रिटिकल हाई प्रायोरिटी, देन लो सिवेरिटी हाई प्रायोरिटी, ओके, लो प्रायोरिटी हाई सिवेरिटी, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं एग्जाम्पल सिनारियोस। प्रायोरिटी ज़्यादा है लेकिन सेवेरिटी कम है, जैसे लोगो, क्लाइंट बोलता है कि मेरा लोगो वैसा के वैसा दिखना चाहिए, वो गलत दिख रहा है। अब इसमें मुझे बताओ इसमें सेवेरिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। सेवेरिटी इज ऑलवेज कंसिडर अबाउट द फंक्शनलिटी। अब ये जो आ रही है वो किसकी रिगार्डिंग आ रही है? जीयूआई रिलेटेड आ रही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिगार्डिंग आया नहीं ये। लेकिन क्लाइंट का दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उस पे है ना, लोगो पे है कि नहीं। वो बोलेगा सबसे पहले तू एक काम कर, वो पहले चेंज कर, मेरा लोगो बराबर दिखना चाहिए। तो हाई प्रायोरिटी लो सेवेरिटी, ये आप आइडेंटिफाई करो अभी खुद से, सोचो कि हाँ क्या सिवेरिटी, एग्जांपल्स निकालो वैसे। लो सिवेरिटी लो प्रायोरिटी, ओके, मेजर सिवेरिटी लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी हाई सिवेरिटी, मतलब क्रिटिकल। सिवेरिटी कैसी रहती है? मिनिमम मतलब माइनर मेजर एंड क्रिटिकल, प्रायोरिटी लो मीडियम हाई, ओके। ये 3 पे फोकस कर रहे हैं, उसमें 4 भी रह सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो severity with respect to the functionality of the application, working of the functionality, priority when how soon to fix it, ठीक है। तो ये हम देते हैं बग को। तो अभी प्रायोरिटी हम देते हैं टेस्ट केसेस और सिनारियो को, कब आपको एग्जीक्यूट करना है। और वहाँ पे हो सकते सेवरिटी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका जैसा टेम्पलेट है वैसा चलेगा। टेम्पलेट के हिसाब से सेवरिटी लगा सकते हैं ना टेस्ट केस को। अरे ये फंक्शनल टेस्ट केस है, इसको तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है क्या नहीं? सो वो लगा सकते, दैट इज डजंट मैटर। बट वेयर एवर दे यू विल आस्क अबाउट द सेवरिटी एंड प्रायोरिटी, ऑलवेज टॉक अबाउट फंक्शनलिटी, ओके। सेवरिटी इज नथिंग बट द फंक्शनलिटी एंड प्रायोरिटी मतलब इज हाउ नीड टू फिक्स इट, how you need to execute, how soon you need to execute, how soon you need to fix it, the bug. Okay, always talk about the bug, severity and priority. Mostly asked question. Okay, 100% mostly asked question. ठीक है। सो दिस इज व्हाट बग रिपोर्ट। एंड जब भी हम बग रिपोर्ट करेंगे तो ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ देयर इज अ नेसेसरी द स्क्रीनशॉट, देन यू हैव टू अटैच द स्क्रीनशॉट इशू का। और यहाँ पे स्टेप टू रूल्स लिखना है यहाँ पे कि भाई साहब ये स्टेप्स फॉलो करो और देखो वही आ रहा है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट चाहिए और एक्चुअल रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्चुअल रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट सेवेरिटी इज हाई, तो डेवलपर सबसे पहले वही उसी को उठाएगा कि वो चेक करेगा। बट क्लाइंट बोलेगा कि प्रायोरिटी उसको रहने दे, पहले मेरी प्रायोरिटी दे, तो उसके हिसाब से। तो अगर प्रायोरिटी बराबर नहीं है, क्लाइंट नहीं है, तो सेवरिटी मतलब फंक्शनलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू हम चेक करते हैं, बिकॉज वी आर ए डेवलपर। तो डेवलपर हमेशा गलतियाँ हमारी हो गई है फंक्शनलिटी में तो हम पहले उसको सुधारने की कोशिश करते हैं फंक्शनलिटी को। 1+1 अगर 2 नहीं हो रहा है, वो 5 हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। लेकिन क्लाइंट बोलेगा कि वो जाने दे, 1+1 2 नहीं हो रहा, लेकिन मेरा पहले लोगो फिक्स कर दे, ठीक है। तो वो होगी उसकी प्रायोरिटी, है क्या नहीं? लेकिन वो होने के बाद हम सेवेरिटी पे इशू पे काम करेंगे और डेवलपर ऑलवेज फिक्स ऑन द सेवेरिटी, ओके। लेकिन बट एज पर द मीटिंग प्रायोरिटी देन वी नीड टू गो फॉर द प्रायोरिटी, ठीक है। उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं। तो ऐसे फिर डेवलपर वो बग को ओपन करेगा, ठीक है। ओपन करने के बाद उसको चेक करेगा, उसको कुछ स्टेप्स दिखेंगे, ठीक है। उस पे लिख के देखेगा कि ये आपने बग फाइंड किया है, ओके। सो थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, जो मेल है वो रिसीव नहीं हुआ है रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे आफ्टर रजिस्टरिंग द अकाउंट, ये बग है।
क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, सक्सेसफुल हो गया रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपको मिल नहीं गया है। ये टेस्ट केस हमने लिखा था ना कि रजिस्ट्रेशन थैंक यू होने को थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए, ये बग है। ठीक है, तो वो उसको चेक करने के लिए ये स्टेप्स दिए हैं। और जो आपने स्टेप्स लिखे थे देखो वहाँ पे टेस्ट स्टेप मैंने बोला था इधर कॉपी पेस्ट कर देना। हम्म, ठीक है, तो वही वो टेप्स रहते हैं, टेस्ट स्टेप्स। ठीक है, तो वो बग देखने के लिए आपको यूआरएल ओपन करो, माय अकाउंट में जाओ, ड्रॉप मेन्यू में रजिस्टर ऑप्शन पे जाओ और वैलिड यूजर के डिटेल्स डालो। ओके, प्राइवेसी पॉलिसी चेक बटन, ओके एवरीथिंग एंड कंटिन्यू बटन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि थैंक यू मैसेज आना चाहिए और एक्चुअल रिजल्ट है कि उसको गया नहीं। तो सेवरिटी दिया मेजर, व्हाई इट इज गिवन द सेवरिटी मेजर, फंक्शनलिटी इशू एंड प्रायोरिटी इज मीडियम। ओके, P1 दे दिया, P0 में था हाई, हम्म, क्योंकि इतना प्रायर नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि उसका काम जम रहा है, क्योंकि वो परचेस कर पा रहा है ना, उसको जाओ नहीं जाओ परचेस कर पा रहा है ना, वो बस हो गया, लॉगिन हो गया ना, वो रजिस्टर हो गया, सक्सेसफुल हो गया। उसको सिर्फ वेलकम मैसेज नहीं किया जाने दो, लेकिन वो परचेस कर पा रहा है ना, दैट इज ओके। ठीक है, सो वैसे आप उसको सेवरिटी प्रायोरिटी दे सकते हो। तो उसको ओपन करेगा डेवलपर और उसको फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद हम उसको रीटेस्ट करेंगे। सो री एग्जीक्यूशन सेम टेस्ट केस, दैट इज रीटेस्टिंग। वही टेस्ट केस हमको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे हम। ठीक है, कब, जब बग फिक्स होता है तब। ठीक है, तो वही टेस्ट केस हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे और दिस इज नोन एज रीटेस्टिंग। और वहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे